Hello and welcome back to a brand new podcast where we explore the world of health, wellness, and medical breakthroughs. Our episode today is going to be an enlightening journey in the field of orthopedic and sports injury. Our guest, Dr. Manu Bora, is an orthopedic surgeon and he is also an international model. A very unusual combination, so let's just dive in. So I think they've got one of the biggest clinic here in Gurgaon. They're at Golf Course Road. So let's just walk into the clinic. One second. Hi. Hello. Right. Wow. So we are going to learn about AC joints, elbow UCL, MCL, and any sports injury. And I think we're going to have a good insight about any sports injury by Dr. Manu Bora. So as I mentioned, I think they've got the biggest clinic. You can see a squat rack here. A lot of different equipments, I think, that are used for their patients. Here, as you can see, they've got a multi-purpose machine, a lot of weights. It looks like a gym to me at the moment. It's very good and nice, clean. They've got a treadmill as well. And this is the evaluation chambers, I think. There are some patients right there, so we will not disturb them. Dr. Manu Bora. Here we are. Welcome, Dr. Bora. Thank you to so our much. show. So to begin and to kick off the conversation, it's a very unusual thing for a doctor and a surgeon to be an international model as well. तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं दोनों चीजें. नहीं, इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है और इस तरह से मैनेज होती भी नहीं है. सो व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद तो मैं काफ़ी मॉडलिंग किया करता था. अब नाउ आई एम बिजी विद माई प्रैक्टिस, सो आई डील विद स्पोर्ट्स इंजरीज. तो अब इतने पेशेंट्स होते हैं, इतने ऑपरेशन होते हैं कि अब मॉडलिंग का टाइम नहीं मिल पाता. सो आई एम स्टिल विद सम ब्रांड्स लाइक रेमंड्स, जिसमें मैं 2 या 3 महीने में कोई एक शूट उठा लेता हूँ. दैट्स इट. बट ये एनकरेजमेंट आई कैसे आप में इनिशियली व्हेन यू वर डूइंग योर ग्रेजुएशन? इज इट? नहीं, एनकरेजमेंट तो मेरे को लगता है कि अब इतना मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी इतना कुछ अवेलेबल है कि लोगों को जब स्कूल में होते हैं तभी उन्हें मालूम पड़ जाता है दैट दे वांट टू गो फॉर मॉडलिंग और नॉट. सो मोस्टली मेरा भी यही था कि स्कूल में ही ये थॉट आया था, पर मुझे हमेशा लगा कि एजुकेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने पहले अपनी एजुकेशन पूरी की एंड देन आई केम इनटू मॉडलिंग. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल अबाउट योर एजुकेशन. आपने मतलब क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़े हैं आप? सो मैंने अपना MBBS जो होता है वो मैंने जोधपुर से किया था, SN मेडिकल कॉलेज. देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ग्रांट्स बॉम्बे. मुंबई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल स्कूल इन इंडिया. ऑर्थोपेडिक्स के अंदर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया. उसके बाद आई केम टू दिल्ली. आई डिड माय SRship इन स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग आर्थ्रोस्कोपी. जो स्पोर्ट्स इंजरीज की जो ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे, जो लिगामेंट टूट जाते हैं या शोल्डर डिस्लोकेशन होता है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स. Then I did couple of fellowships outside India, New York, Picky Hospital for Special Surgery. And then I started working in Gurgaon. Working as in a clinic or in a hospital, or you started on your own? Initially, I was with some hospitals, but now I have my own clinic and we operate in many cities, mainly now in Bombay, Bangalore and Gurgaon. But only sports injuries. But the one that I see here is a beautiful and a quite spacious clinic that you have, so I must compliment you. Thank you for that. So basically, we have to have a like good gymnasium and running track and these kind of things to get the people back into the sports after the injury. Right. So there is necessity. Your primary focus is to treat the sports injury, or you're a holistic orthopedic surgeon? There is a very thin line between these two things. कोई भी एक चीज ठीक करने के लिए सिर्फ उस पर तो फोकस करना नहीं होता. जैसे if I get a ligament tear patient, तो अगर मैं ACL उसका रिकंस्ट्रक्ट करूंगा तो मैं ACL को ठीक करता रहूंगा तो मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊंगा. So we have to work on muscles also, on their core, on their
बेसिकली द होल लेग मसल्स. Okay. So जब पूरी जगह काम करते हैं तभी then we get the Results. right. Got So it. इसमें होलिस्टिक तो नहीं रहता कि मैं कुछ एलोपैथी के अलावा कुछ और ब्रांचेस पकड़ने लग जाऊं. बट यस, अगर स्पोर्ट्स इंजरी का कोई पेशेंट आता है तो उसकी इंजरी से वापस ठीक करने के लिए जो जो स्पेशलिटीज लगती है उसके अंदर, उसमें फिजियोथेरेपी भी है, उसमें स्पोर्ट्स मेडिसिन भी है, स्पोर्ट्स सर्जरी भी है. तो ये तीनों एक तरह से जुड़े हुए हैं, बट नॉट होलिस्टिक. श्योर. थोड़ा सा फिर पीछे चलते हैं डॉक्टर बोरा. आप मुझे ये बताएं कि दैट जब आप स्कूल में थे तब आपने सोचा था कि मतलब यू वुड बी एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, एंड यू नो व्हेन यू वर चूजिंग एमबीबीएस there are so many other fields like Right. cardiologist and you know there are other departments, so why did you choose orthopedic only for yourself? उसके यहाँ 3-4 रीजंस थे. पहली बात तो कि जब मैंने एमबीबीएस करना चालू किया, डेफिनेटली फर्स्ट ईयर में तो आप एक्सप्लोर ही करते हो ना कौन कौन सी ब्रांचेस होती है. मेरे को ऑर्थोपेडिक्स वाले हमेशा थोड़े मतलब वो खुश रहते थे, और थोड़ा उनका वो शायद थोड़ा हॉस्पिटल में वो थोड़ा कंट्रोल भी रहता था. सो ऑर्थोपेडिक्स काफी लोगों की होती है ड्रीम ब्रांच. देन मैं खुद भी स्पोर्ट्स में एक्टिव था, स्विमिंग, टेबल टेनिस, और वहां पे मैंने देखा कि मैक्सिमम जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज की होती है सर्जरी, तो सर्जरी अच्छी होने के बावजूद भी कई बार पेशेंट पूरा ठीक नहीं हो पाता, रिहैब नहीं मिला, एक्सरसाइजेस की गाइडेंस नहीं मिली, सिर्फ सर्जरी हो गई, उसके बाद का कुछ प्रोटोकॉल्स आइडिया ही नहीं है. तो उससे रिजल्ट्स बड़े कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे. तो मुझे ध्यान था कि ऑर्थोपेडिक्स करना है और स्पोर्ट्स मेडिसिन में ही करना है. सो दैट लेट्स ब्रिंग सम चेंज के सिर्फ सर्जरी करने से लोग ठीक नहीं होते. सर्जरी के बाद जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ढंग से नहीं हुआ तो री इंजरी और सब चांसेस रहते हैं, कभी भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो पाता पेशेंट. तो ये चीज शुरू से थी. एमबीबीएस से मैंने सोच लिया था कि स्पोर्ट्स मेडिसिन करना है. ओके. और कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, ओवरऑल एक्सपीरियंस? Now it's been I passed out my PG in 2010, so it's been 14 years 14 years. This post graduation. Okay. So tell us about your background. I mean, from where you are, and are you from Gurgaon, Delhi? So basically, I'm from Jodhpur. Okay. So my mom is a doctor. Okay. My dad was a lawyer. But then फिर मेरे को लगा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में और मॉडलिंग करनी थी मुझे साथ साथ, तो मेरे को लगा दिल्ली बॉम्बे तो आना ही पड़ेगा. सो देन दैट्स आई डिड पीजी फ्रॉम बॉम्बे एंड स्टार्टेड मॉडलिंग. उसके बाद समय मुझे लगा कि फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन दिल्ली इज बेटर देन बॉम्बे फॉर मी. ओके. कुछ लोगों के लिए बॉम्बे अच्छा रहता है. मेरे को लगा मेरे जो सिनेरियो उस हिसाब से दिल्ली मेरे लिए बेटर रहेगा स्पोर्ट्स मेडिसिन परस्यू करने के लिए, और साथ साथ में मॉडलिंग भी होती थी दिल्ली में. सो देन आई शिफ्टेड टू दिल्ली. ओके. जब मैं आपके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था डॉक्टर बोरा, तो यू नो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई सॉ यू यूजिंग दिस टर्म ACL. So would you like to break it down for our viewers in simplified terms that what ACL is और क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है? So ACL is basically one ligament in the knee. उसका नाम है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो ऊपर वाली थाई बोन है और नीचे वाली जो शिन बोन है, उन दोनों को बीच में जोड़ कर रखता है. एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे दोनों बोन जुड़ी हुई रहती है. एक रोप आप बोल रहे हैं? हाँ, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे लिगामेंट. तो ये एक मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज है जिसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है. मीन्स ऐसे स्पोर्ट्स इंजरीज तो स्ट्रेन होते रहते हैं, पर जो कोई किसी अगर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इंजरी की जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा मेजर हो जाए तो उसमें ये मोस्ट कॉमन है. इसीलिए बहुत कॉमनली लोगों को हो जाता है, और जब हो जाता है तो पैर लचक मारता है, अनस्टेबल हो जाता है, हिलता रहता है पैर. हो सकता है नॉर्मल चलने पे नीले पर जंपिंग, चेंज ऑफ डायरेक्शन, उन चीज़ों में हिल सकता है. सो डेफिनेटली मैं इसी का सबसे ज़्यादा मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में था शुरू से, ACL में. सो नाउ वी डू मैनी थिंग्स अराउंड दिस लिगामेंट. वी हील इट विदाउट सर्जरी. ओके. देन सर्जरी भी, रिपेयर भी होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, ऑगमेंटेशन भी होता है, रीजनरेशन भी होता है. सो एक ही चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस रहा मेरा, और इसीलिए शायद मैं उसके अराउंड एक रिहैब सेंटर भी बना पाया. यानी मेरे को जो ACL के पेशेंट हैं वो तभी ठीक होंगे जब वी हैव ए गुड रिहैब सेंटर है, रिहैब टीम. बट अदरवाइज ACL के और सेंटर्स हैं, क्लिनिक हैं, वो आर मोर फोकस्ड ऑन ACL ओनली. हाँ, डेफिनेटली ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे
धीरे धीरे जो प्रैक्टिस है ना बड़ी फोकस्ड होती जा रही है जी। ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे क्लिनिक है, हॉस्पिटल जो ACL पे फोकस करते हैं। नहीं, मैं सिर्फ इंडिया की बात करता हूँ क्योंकि इंडिया में भी है कई सारे हॉस्पिटल डॉक्टर्स। इफ आवर व्यूअर्स आर वाचिंग and if they are suffering through ACL, and I think this is one of the best clinic, हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ। हाँ, तो जहाँ वो आ सकते हैं और अपना एक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो मैं इसलिए वही जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे ACL की क्लिनिक्स और भी हैं इंडिया में, या तो देखिए कोई भी क्लिनिक एक्सक्लूसिव ACL का नहीं हो सकता। सो स्पोर्ट्स इंजरीज क्लिनिक बहुत सारे हैं, मेरा भी स्पोर्ट्स इंजरी क्लिनिक है। सो ACL मैक्सिमम आता है, तो PCL भी आता है, मेनिस्कस भी आता है, लेटरल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस, MCL, LCL, एंकल आते हैं। अच्छा, ये सब कोई टर्म मेरे को समझ में वैसे नहीं आ रही है। मतलब ACL इज अ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, बट देन स्पोर्ट्स इंजरीज अबाउट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ऐसे बहुत सारे क्लिनिक है। तो ACL जो होता है डॉक्टर बोरा, इज इट ओनली ऑन द नीज और इट्स ऑन ईच जॉइंट दैट वी हैव इन आवर बॉडी? लिगामेंट्स हर जॉइंट में होते हैं, पर जो नी का एक पर्टिकुलर लिगामेंट को ACL बोलते हैं। अच्छा, उसको सिर्फ ACL बोलते हैं। तो अलग अलग लिगामेंट का अलग अलग नाम है। ओके, पर फंक्शन एक जैसे ही होता है कि दो बोन्स को जोड़ के रखते हैं। आई डू अ लॉट ऑफ जिम, तो मुझे याद है कुछ 5-6 साल पहले मेरे को भी कुछ मेरे स्पाइन में ऐसा कुछ पेन रहना शुरू हो गया था। काफी पेन रहता था जिसमें मैं गर्दन नहीं बिल्कुल अपनी घुमा पाता था। तो उस समय मैं गुड़गांव में काफी मैं भटका और मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो उसको वो कर पाए। तो कई डॉक्टर्स के पास मैं गया तो उन्होंने ये बोला कि आपका जो गैप्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो वो कुछ पिन थेरेपी करते हैं जिससे वो गैप्स कम हो जाते हैं। क्या वो सेफ होता है, नहीं होता है? क्या वो करेक्ट थेरेपी है, नहीं है? देखिए जब भी नेक पेन, बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं तो आखिर रूट कॉज तो ये है कि नेक पेन, बैक पेन चालू इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेन किया। मोबाइल झुक के देखना, टीवी लेटे लेटे देखना, गर्दन झुकी हुई, कंधे झुके हुए हैं पूरे दिन ऐसे ही। और साथ साथ में आपने कोई एक्सरसाइजेज भी नहीं की अपने बैक, नेक और अपर बैक की उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, और स्ट्रेन डाल रहे हो और एक्सरसाइज नहीं करो, तो बेसिकली मसल्स वीक हो गई। मसल वीक होगी और उस पर स्ट्रेन ज़्यादा पड़ेगा तो उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स इनको बोलते हैं, जो पेनफुल होता है बहुत। वही चीज़ें बार बार मसल स्पाज्म में जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बन जाती है, ये चीज़ बहुत पेन देती रहती है। सो जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या मैं बोलूँ 3 पार्ट में। चलो, फर्स्ट हो गया रेस्ट, बहुत दर्द हुआ तो कुछ दिन रेस्ट कर लिया, 2 से 3 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट का ट्रीटमेंट है वो है मैनुअल मसाज कर सकते हैं, फिर जैसे आपने बताया एक्यूपंक्चर या ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं, कप थेरेपी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या करेंगी, मसल को एक बार रिलैक्स करेंगी और उसके जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा रिलीज करेंगे। अब ये चीज़ें हो गई, आपको आराम मिल गया। पर अगर आपने इसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की वापस, तो वापस ये सब चीज़ें डेवलप हो जाएगी। सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाई ले लेते हैं, रेस्ट करते हैं, ज़्यादा ये IFT ये सब चीज़ें करके मसल रिलैक्स करके सोचते हैं आप ठीक हो गए। पर उनको फिजियोथेरेपी भी बोलते रहते हैं कि नहीं भाई अभी ठीक नहीं हुआ, अभी लो एक्सरसाइज सेशन। वो जब तक नहीं आप करोगे तब तक आप वापस घूमते ही रहोगे। मैं वैसे भी देख रहा हूँ डॉक्टर बोरा, काफी नई चीजें आती जा रही है अभी लेटली। आई थिंक द मोस्ट फेमस इन थेरेपी चल रही है वो कप थेरेपी। हाँ, वो क्या है? इज इट? मैं बताता रहा हूँ, ये सब थेरेपीज अच्छी हैं, अच्छी हैं, ये अच्छी हैं, पर ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज जब तक नहीं करोगे तो पास कैसे होगे। सो ये सेकंड स्टेज है, आपकी मसल्स टेंस है एंड ट्रिगर पॉइंट्स है, आप उसको रिलीज कर रहे हो सब चीज़ों से, कप थेरेपी से, मैनुअल रिलीज से, सब चीज़ों से, एक्यूपंक्चर जो भी थेरेपी है, क्रायोप्रैक्टर, ये सब उसको मसल को एक बार रिलैक्स कर रहे हैं, आपको फील गुड हो रहा है, आपका पेन खत्म हो रहा है। पर जब तक आप वापस उस मसल को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो वापस पेन देने लगेगी थोड़े दिन बाद। चलिए, मैं एक बार ना ये स्पोर्ट्स के लोगों की बात हम नहीं करते, हम ऐसे लोगों की बात करते हैं, पीपल हु आर वर्किंग एंड दे डू 9 to 6 जॉब, और जो जिम भी नहीं करते या कोई ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हैं। हाँ जी। तो अगर वो ऐसे सिचुएशन में आते हैं कि वो कप थेरेपी करा रहे हैं या वो जो पिन थेरेपी है वो करा रहे हैं, आप कह रहे हो जो उसके बाद की स्टेज है वो ये है कि दे शुड डू द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू हैव देयर मसल्स रिकवर, राइट? बट अगर वो नहीं करते तो वापस खराब हो जाएंगे, तो वापस खराब हो जाएंगे। हाँ, आप समझे नहीं, आपको प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि आपकी मसल्स वीक थी। आपने प्रॉब्लम को थोड़ा रिलीज करके आराम तो दे दिया, पर मसल वीक है, वो तो वीक ही है ना। सो जब तक उसको स्ट्रांग नहीं करोगे प्रॉब्लम वापस डेवलप हो जाएगी, होती रहेगी, क्रॉनिक बन जाएगी। तो आप यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर जो नॉर्मल है, जो जिम या जिसने कोई एक्सरसाइज नहीं भी कर रहा, अगर आप ये थेरेपी कराते हैं तो उसके बाद दे शुड नहीं, हैव टू, मस्ट, मतलब अगर
ठीक होना है तो अब आपको एक्सरसाइजेस करनी है, करनी पड़ेगी। और बार बार आपको कब थेरेपी करानी है जिंदगी में, तो कराते रहो हर महीने किस समय। बट इन सब के लिए आप ओल्ड एज के बारे में क्या कहते हैं डॉक्टर बोरा, मतलब वो कैसे ये सब कर सकते हैं? एक्सरसाइज करके, हर की इंटेंसिटी अलग होती है ना, ओल्ड एज की एक्सरसाइज अलग है, यंग एज की एक्सरसाइज अलग है, नेक पेन की एक्सरसाइज अलग है, बैक पेन की अलग है, नी पेन की अलग है, तो हर की तो अलग एक्सरसाइज है ना, सो इट डिपेंड्स अपॉन एज एंड स्ट्रेंथ। ओके, चलिए हम बात कर ही रहे हैं जैसे ऑफिस गोअर्स की, लेट्स से उनको कोई इशू नहीं है, बट एज पर यू व्हाट कैन दे डू टू इंश्योर दैट देयर बोन्स आर हेल्दी और जो है ना एज ना हो जल्दी? सो देखिए, बोन्स हेल्दी के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है। पहला चाहिए होता है कैल्शियम एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स। सो इसके लिए आप है ना कैल्शियम आप फूड से लीजिए। सो बहुत सारा पनीर ले सकते हैं। मिल्क को मैं बहुत कुछ फेवर नहीं करता, पर आप मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर कर्ड और पनीर ले सकते हैं, जिससे आपको कैल्शियम मिलेगा। उसके अलावा और बहुत सारे कैल्शियम रिच फूड्स हैं, वो ले सकते हैं। तो 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए होता है, 1200 मिलीग्राम, तो उतना मिल जाता है अगर आप चूज करें ढंग से। उसके बाद चाहिए होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी के जो सैशे आते हैं 60,000 के, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वाले, तो वो 1 वीक ले सकते हैं। एक बार आपने 2-3 महीने ले लिए तो 1 मंथ कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। पर जो इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है एक्सरसाइजेस। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये खाने के बाद भी आपकी बोन स्ट्रांग नहीं होगी। जब तक आपकी मसल उस बोन को पुल नहीं करेगी ढंग से और आप स्ट्रेस नहीं देंगे उस बोन पे, तब तक बोन की नीड ही नहीं आएगी कि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करे ब्लड से। राइट। सो ये तीनों चीजें जब पूरी होगी तभी वो एक स्ट्रांग बोन रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। एक्सरसाइजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दवाइयाँ और कैल्शियम खाने से और कैल्शियम टैबलेट्स मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ अनलेस अनटिल मेडिकली नीडेड है। बट ऐसा क्यों? नहीं, आपको कैल्शियम फूड से मिल सकता है, क्यों दवाई खाऊं मैं? नहीं, क्योंकि मैंने देखा है काफी एथलीट्स, पीपल हु आर इनटू बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस, वो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के अपने आप ही ऐसी कुछ मेडिसिन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम्स और... आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप ढंग से थोड़ा रिसर्च करो दिमाग लगा के, भैया कितने मिलीग्राम कैल्शियम है, मल्टीविटामिन कौन कौन से हैं, कौन से मैं फूड से ले सकता हूँ, कौन से मैं फूड से नहीं ले सकता। सो मल्टीविटामिन मैं भी लेता हूँ, मैं विटामिन सी लेता हूँ, ई लेता हूँ, डी लेता हूँ, मल्टीविटामिन और भी जो बायोटिन वगैरह सब लेता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है शायद वो फूड से कम मिल रहा है मुझे, पर मैं कैल्शियम नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि वो मैं फूड से ले सकता हूँ आराम से। है तो मैन मेड ही ना टैबलेट, माइट हैव सम साइड इफेक्ट्स। नहीं, मैंने ऐसा सुना है क्योंकि ज्यादा कैल्शियम लेने से जो आपकी आर्टरीज हैं वो ब्लॉक करता है। मैं कह रहा हूँ, सो आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट इट बिकॉज आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, राइट। सो मैं वहाँ जाऊंगा नहीं। बट हाँ, देयर इज डेफिनेट सम रिसर्च तो है ही वर्ल्ड के अंदर, कैल्शियम टैबलेट से नुकसान होता है कुछ। सो अगर कोई जना कैल्शियम खाए ना बिल्कुल ही फूड से, तो उसके लिए कैल्शियम टैबलेट इंपॉर्टेंट है, भाई फायदे ज्यादा है नुकसान कम है। और अगर मैं वही चीज मैं फूड से ले लूँ तो फायदे तो मैंने फूड से ले लिए, तो मैं अननेसेसरी उस टैबलेट का नुकसान क्यों उठाऊं? ये सिंपल लॉजिक है। बट किन किन चीजों में, आप जैसे बोला आपने दही में होता है, पनीर में होता है, उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसमें कैल्शियम एक... देखो, टोफू में होता है, ऑरेंजेस में बहुत होता है, फिर एग में बहुत होता है, ओके, मिल्क में भी होता है, पर मिल्क मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता। उसके अलग रीजंस है, क्योंकि मिल्क भी बहुत कोई हेल्दी नहीं माना गया है ह्यूमन बॉडी के लिए। जो हेल्दी है मिल्क के वो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। पनीर अच्छा रहता है क्योंकि उसमें अननेसेसरी कार्ब्स निकल जाते हैं। फिर जो कर्ड है, योगर्ट मिल्क से बनता है, वो बहुत अच्छा रहता है बिकॉज दे हैव दिस लैक्टोबैसिलस व्हिच इज इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरियाज, प्रोबायोटिक्स रहता है। और उसके अलावा घी, देसी घी बहुत अच्छा रहता है, इट इज वेरी रिच इन हेल्दी फैट्स। चीज इज गुड। बाकी मैं पनीर को सो लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स बट बारिंग मिल्क? नहीं, लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट आइदर दे आर फर्मेंटेड टू ग्रो द बैक्टीरियाज, और वो पनीर या घी है जिसके वजह से कार्बोहाइड्रेट्स निकल गए। देयर इज नो पॉइंट ऑफ अननेसेसरी कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर थिंग्स व्हिच द मिल्क हैज, जिसकी नीड नहीं है। थोड़ा सा आप ये बताइए डॉक्टर बोरा कि कौन सी स्टेज पर जाकर एक मतलब उनको जरूरत पड़ती है सर्जरी की, और कौन सी स्टेज पर आप उसको वैसे ही रिकवर कर सकते हैं? देखिए, ACLT एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में अगर ग्रेड 1 स्ट्रेन है, इडीमा है, आपकी एमआरआई में लिखा हुआ है या लो ग्रेड लिखा हुआ है वर्ड, तो वो बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर ओन प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा एंड ग्रोथ फैक्टर्स।
ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट से उसको ठीक कर सकते हैं विद द एक्सरसाइजेस। पर अगर एक बार वो हाई ग्रेड की तरफ चला गया, नीयर कंप्लीट चला गया, सो डेफिनेटली सर्जरी ही एक ऑप्शन रहता है। पर सर्जरी भी बहुत सारी तरह की होती है। नाउ वी डू ACL रिपेयर के अंदर हम उसी को रिपेयर करते हैं, नया नहीं बनाते। सो ऑल द कॉम्प्लिकेशंस वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है, पेन नहीं होता पेशेंट को। एंड ACL रिकंस्ट्रक्शन में वी डू इंटरनल ब्रेस। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें जिससे सर्जरी के बाद भी गेट बैक टू गेम करना पॉसिबल है। नहीं, इजी तो नहीं कहूंगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है 6 महीने, पर हाँ डेफिनेटली पॉसिबल। मतलब अभी जैसे मैं उनको फॉलो करता हूँ, हमारे क्रिकेटर है ऋषभ पंत, आपको पता ही होगा उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो ही इज आल्सो रिकवरिंग ऑन दैट, बट उनके अभी भी कुछ मुझे लगता है लेग में कुछ। तो मैं कह रहा हूँ ना, इजी नहीं है, आराम से नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है एथलीट की। पर हाँ, एक राइट गाइडेंस हो, एक एनवायरनमेंट हो मेहनत का, तो एथलीट ओवरकम कर लेता है। डॉक्टर बोरा, आप ये भी थोड़ा सा समझाएं कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस, और मतलब आप कैसे, हाउ कैन अ पर्सन डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर इट्स अ मसल पेन और अ जॉइंट पेन? वो बड़ा इजी है। मसल पेन आपकी थाइस पे हो सकता है या काफ पे हो सकता है, जहाँ मसल्स है। जॉइंट जो होते हैं जनरली, जैसे जो नी जॉइंट है उसके आसपास कोई मसल नहीं होती, बोन नहीं, बोन है, कम होती है मसल्स। तो यहाँ का पेन तो स्पेसिफिकली नी जॉइंट पे होगा। जो शोल्डर होता है उसमें शोल्डर जॉइंट मसल से पूरा कवर्ड है, हिप भी पूरा कवर्ड है। सो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा दिखाने। अच्छा, दिखाना तो आप मतलब खुद घर बैठकर नहीं डिसाइड कर सकते कि ये मसल पेन है या ये जॉइंट पेन है? नी का डिसाइड कर सकते हो, जहाँ पर अराउंड ज्यादा मसल्स आपको फील नहीं होती है, जहाँ मसल फील हो रही है तो वहां पर आपको डॉक्टर के पास। पर एक्चुअली मसल पेन बहुत ही कम होते हैं। जनरली जो पेन्स होते हैं वो मसल जब स्पाज्म में चली जाती है तब पेन करती है, वो नेक और इधर की करती है, कभी काफ कर सकती है, हैमस्ट्रिंग कर सकती है। ये तो बहुत सारे पेन टेंडन के होते हैं, टेंडिनाइटिस, टेंडन टियर टेंडिनाइटिस। तो मसल टेंडन में कन्वर्ट होती है और टेंडन बोन में जाके जुड़ता है। तो ये जो जंक्शन है मसल और बोन के बीच का जो टेंडन है, उसमें जहाँ वो बोन से जुड़ रहा है वहां पे टेंडिनाइटिस डेवलप हो जाती है, विच इज क्वाइट अ बिग कॉजेज ऑफ पेन ऑल ओवर द बॉडी। तो वो एग्जैक्टली क्या है वो तो आपको सर्जन देख के ही बताएगा। ओके, थोड़ा सा आप ये बताएं कि कितने तरीके की स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है, मतलब क्या उनके नाम होते हैं और क्या क्या होता है? बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरी होती है, पर हर डॉक्टर कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इंजरी में ट्रेंड होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो मैं शोल्डर के अंदर शोल्डर डिस्लोकेशन, रोटेटर कफ टीयर, स्लैप टीयर, बाइसेप्स के पैथोलॉजीज, लेब्रम और कार्टिलेज प्रोजेस। हिप के अराउंड आएंगे तो हिप आर्थ्रोस्कोपी में एसिटेबल इम्पिंजमेंट होता है, देन कार्टिलेज डिफेक्ट्स होते हैं। नी के अंदर ACL, PCL, MCL, LCL, मेनिस्कस। एंकल के अंदर ATFL, रिकरेंट डिस्लोकेशन। सो ये चीजें मेरा पोर्टफोलियो है। कोई सर्जन होता है जो सिर्फ हैंड में डील करते हैं, सो हैंड में रिस्ट और एल्बो की इंजरीज को ट्रीट करेंगे। तो हर कोई सर्जन का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक निश होता है, तो बहुत सारी है, काउंट नहीं कर सकते, और रोज नई नई आ जाती है। कोई पहले ट्रीटमेंट नहीं था उसका, अब आ गया। सो रोज कुछ ना कुछ नया 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 आता रहता है। दैट्स व्हाई एवरी गुड सर्जन गोज आउटसाइड, बाहर जाता है, लर्न करता है फ्रॉम द कॉन्फ्रेंसेज विद द कैडेब्रिक कोर्सेज। और ये कांस्टेंट लर्निंग पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। आई आल्सो गो आउट every year for twice just for my learning कि नया कौन सा सर्जिकल टेक्निक्स आई है, what the other people have invented। so आप डायरेक्टली उनसे भी सीख के आ सकते हो जिन्होंने वो चीज इन्वेंट करी। श्योर। थोड़ा ये बताएं डॉक्टर बोरा कि लिगामेंट टेयर और टेंडन टेयर्स ये सब क्या होता है, और ये क्या फर्क होता है मसल टेयर से, या जिसको पुराने टाइम पर हम लोग बोलते थे कि मांस फट गया, तो क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? मांस फट गया तो बड़ा वेग सा वो है जो हाँ किसी भी चीज पे ले लेते हैं, पर बेसिकली जो मसल टीयर होते हैं वो तो मसल बेली में टीयर हुआ वो अपना फील आता है, उसके लिए बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना आप ही सेल्फ फीलिंग होते हैं। जो वो मसल टीयर एंड मसल जो होते हैं स्ट्रेन, वो मसल बेली में होंगे। फिर मसल बेली कन्वर्ट होती है टेंडन में, और टेंडन लगता है बोन पे। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टेंडन खींचता है, बोन अपना हाथ उठाती है। फिर टेंडन टीयर हो गया, डेफिनेटली उसमें कई बार टेंडिनाइटिस है तो बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। टेंडन का कंप्लीट टीयर है तो सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है, टेंडन रिपेयर। और तीसरा क्या पूछा था आपने? मैंने वो पूछा था कि टेंडन और लिगामेंट टीयर, इसमें क्या फर्क रहता है? लिगामेंट बेसिकली जो दो बोन्स होती है उनके जो बीच के जो जोड़ने वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो लिगामेंट होते हैं। सो लिगामेंट दो बोन को जोड़ते हैं, टेंडन मसल और बोन को जोड़ते हैं आपस में। ओके।
तो ये भी उसी तरह से ब्रेक होते हैं। टेंडन मसल्स मतलब बेसिकली टेंडन और लिगामेंट कई बार साथ साथ रहते हैं आपस में, 3-4 टेंडन है, 5-7 लिगामेंट से वो पूरा एक जॉइंट बना रहा है। सो दोनों के अंदर डैमेज आ सकता है और दोनों को ही रिपेयर या रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ओके, मैं आपसे कुछ जेनरिक क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि मैं जिम करता हूँ और काफ़ी टाइम से जिम कर रहा हूँ। तो कई बारी जो मेरे कोलीग्स हैं जिम में, उनके कुछ ना कुछ होता रहता है। जैसे एक मेरा कोलीग है, उसके काफ़ी टाइम शोल्डर में कुछ पेन था, जिसकी वजह से वो कोई भी शोल्डर की एक्सरसाइज या प्रेस एक्सरसाइज कोई भी नहीं कर पा रहा था वो। और काफ़ी टाइम रहा, उसने एक दो जगह दिखाया भी, मुझे नहीं पता उसने कुछ उसके लिए मेडिसिन ली या नहीं ली, बट ऐसा कुछ उसने मेजर सर्जरी नहीं कराई या कुछ ऐसा MRI वगैरह कुछ नहीं कराया। जी। बट विद टाइम उसने वो रुका नहीं। हाँ, मतलब मैं उसको बोलता भी था कि दैट आई थिंक यू शुड टेक सम रेस्ट, बट वो कभी रेस्ट के लिए रुका नहीं और वो जिम में आकर थोड़ा हल्का शुरू करा, बट 10-15 महीना फिर उसने अपना स्ट्रेंथ जो है वापस रीगेन कर ली। एंड आई थिंक राइट नाउ ही इज परफेक्टली फाइन। मेनली हो सकता है कि उसने कई बार आपको ना यूट्यूब से और जो है इंटरनेट उससे अब ना बिल्कुल अगर आपको सर्च करना आता है ये पेन है ये कैसे ठीक कर सकते हैं, सो देयर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने बहुत ही अच्छे एक्सरसाइज शेड्यूल बता रखे हैं, ये एक्सरसाइज करो ठीक हो जाओ, एंड आप उसको डायग्नोस भी कर सकते हो। तो मेनली प्रॉब्लम क्या होती है शोल्डर के अंदर, जो लोग बहुत जिम जाते हैं दैट दे डू लॉट ऑफ देयर वर्कआउट अराउंड दिस डेल्टॉइड, जो ऊपर आपको बल्क मसल दिख रही है, तो डेल्टॉइड आपकी मजबूत करते रहेंगे, वही दिख रही है। दिस ग्रुप ऑफ मसल्स रोटेटर कफ जो इसके नीचे है, करेक्ट, आप उस पर फोकस नहीं करता कभी। पर कुछ लोग करते हैं, पहले देखेंगे रोटेटर कफ से हाँ, वो स्विंग से कुछ ना कुछ करते रहते हैं, राइट। सो दीज आर द रोटेटर कफ वार्म अप एक्सरसाइजेस। कुछ लोग और इंटेलिजेंट होते हैं तो वो इसेंट्रिक मोड में भी कर रहे रहते हैं, मैंने जिम में देखा, पर मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे। अब क्या हो रहा है, इम्बैलेंस डेवलप हो गया, ये डेल्टोइड तो बहुत स्ट्रांग हो गई, रोटेटर कफ रहेगी बिल्कुल पतली, और वो चीज़ शोल्डर पेन देती है। अल्टीमेटली पार्शियल टीयर होता है, फिर कंप्लीट टीयर होता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स आते हैं मेरे पास अपना रोटेटर कफ तोड़ के, फिर सर्जरी करनी पड़ती है। सो उसको डेफिनेटली आपके दोस्त को या तो किसी ने अच्छी तरह से गाइड किया या वो सेल्फ गाइड हुआ, उसने रिसर्च करी कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो लगा रहा है एक्सरसाइज करने में, ठीक हो गया। सो एक्सरसाइज इज द की। अगर एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रहे, यस, उसके बाद आप फिर MRI करा सकते हैं पता लगाने के लिए। MRI कई बार पहले भी करा सकते हैं, अच्छा रहता है, बाल पड़ जाए तो नहीं हो रहे, देन द अदर ट्रीटमेंट विल स्टार्ट। पर कौन से में एक्सरसाइजेस काम करेगी किस टीयर में काम नहीं करेगी, वो डिफ्रेंसिएशन तो एक सर्जन ही बता सकता है। हाँ, ये टीयर से इसमें एक्सरसाइज से ठीक हो जाओ, नॉन सर्जिकल थोड़ा इंक्रीज हो गया टीयर, तो यस, दिस इज द प्रोसेस। और ये फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? मतलब बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है। फ्रोजन शोल्डर कई बार ओल्ड एज में डेवलप होता है, जिनको डायबिटीज होती है उनमें ज़्यादा डेवलप होता है। सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका जो कंधा ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जाना बंद कर देगा, यहीं तक जाएगा और पीछे नहीं जाएगा। पीछे जाना सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट होता है और फिर धीरे धीरे ऊपर उठना रेस्ट्रिक्ट जाता है, और रात के टाइम में काफ़ी पेन करता है। सो सिंपल भाषा में बोले तो जो जॉइंट के ऊपर जो कैप्सूल है वो टफ हो गया है, स्टिफ हो गया है, उसमें वो लचीलापन नहीं रहा। सो अब या तो आप लोग खुद कुछ इक्विपमेंट्स खरीद के, जैसे पुली आती है, एक शोल्डर पुली अमेजोन में मिल जाती है, और इस तरह से कुछ डंडे से होती है, कुछ सिंपल एक्सरसाइज है बेसिकली शोल्डर स्ट्रेचिंग की। तो स्ट्रेच कर करके धीरे धीरे उसको खोला जा सकता है। दर्द होता है काफ़ी, आई अंडरस्टैंड, पर वही एक तरीका है। स्ट्रेचिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है ताकि ये दोबारा डेवलप नहीं हो। तो दोनों स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ दोनों करके आप धीरे धीरे एक्सरसाइज इंक्रीज करके इसको खोल सकते हैं। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट भी आप में इसके अंदर मदद कर सकता है, एक्सरसाइज पे फोकस कर। तो डॉक्टर बोरा, जैसे आप ये बता रहे हो कि ये काफ़ी जो है ओल्ड एज में होता है फ्रोजन शोल्डर, और मैंने देखा है जितने भी ओल्ड लोग होते हैं, द मैक्सिमम दैट दे कैन डू, दे कैन गो फॉर अ वॉक। बट उनके लिए ऐसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, शोल्डर का एक्सरसाइज करना, डू यू थिंक it's recommended, and how do you motivate them to do that? मोटिवेशन तो खुद अंदर से ही आता है। वॉक करना बहुत अच्छा होता है, वॉक इज ए गुड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा, और करना ही चाहिए। पर आप सिर्फ वॉक कर रहे हो, बोल रहे हो मैंने एक्सरसाइज कर ली, तो वो भी बिल्कुल गलत है। वॉक तो डेफिनेटली करनी है, पर वॉक के साथ साथ कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक ओल्ड एज के इंसान को ज़रूर करनी है, क्योंकि उसकी तो मसल एट्रोफी ज़्यादा हो रही है। सो मसल मास वो बहुत जल्दी लूज कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हर बॉडी पार्ट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, और वो भी एक करेक्ट गाइडेड वे में कि नी में कौन सी एक्सरसाइज करनी है आपके एज के हिसाब से, और जितना आपका नी पेन है उसके हिसाब से, शोल्डर में कौन सी करनी है, बैक में, नेक में। तो वो एक पूरा शेड्यूल होता है जो बाकी लोग एक्सरसाइज करते हैं, वैसे पूरी वीक एक्सरसाइज करनी है आपको, 1 से 2 दिन रेस्ट ले सकते हो। तो बेसिकली स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा मसल में उनको भी काम करना पड़ेगा, हर बॉडी पार्ट के।
वॉकिंग ज़रूरी है, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि मतलब ये चीज़ तो ओल्ड एज में क्या है, ये तो हमारे यंगस्टर्स में भी होता ही है, जिसमें जैसे किसी को आप बोलो कि दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर फिटनेस, द फर्स्ट थिंग दैट दे डू इज दे स्टार्ट वॉकिंग. Yeah. But apart from that, I don't think that they get into anything else like, stretching or yoga or for that matter, doing some sort of strength training. And I think by strength training, I don't mean to start lifting weight, but I think एक basic तो होना चाहिए जिससे आपका muscle जो है हर बॉडी पार्ट में रहे, जो आपको हेल्प करे. वो बहुत ज़रूरी है, पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में एक बार आपको कंसल्टेशन ज़रूर लेना है. कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे हम लोग भी बहुत लोगों को देते हैं कि आपके जो पर्टिकुलर मसल्स हैं उसमें अगर आपको बिल्डअप करना है, लीन करना है, तो पर्टिकुलर कौन सी सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होगी जो आपको इंजरीज से बचाएगी ड्यूरिंग दैट प्रोसेस. आपको 2 साल तक एक्सरसाइजेस करनी है, तो वो एक्सरसाइजेस कैन इंजर योर बॉडी, राइट. पर वो कौन सी एक्सरसाइजेस है जो भी करना जरूरी है. जैसे डेल्टोइड अगर कर रहे हो तो रोटेटर कफ करो, नी के अंदर भी हमें एक्सरसाइज करनी है, कुछ हमारी स्ट्रेचिंग्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ें एक अच्छा कोच आपको गाइड कर सकता है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच गाइड कर सकता है, या अच्छा स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट गाइड कर सकता है, या बहुत सारे फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं जो जिनको नॉलेज काफ़ी अच्छी है वो गाइड कर सकते हैं.